वार्ड नंबर 63 के पार्षद सलीम अख्तर पर राशन दुकानों में घोटाला करने का आरोप लगा है। मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारी राशन दुकान पर आए और दुकान को सील कर दिया। कुल्टी के वार्ड नंबर 63 के तृणमूल पार्षद सलीम अख्तर अंसारी की राशन दुकान सील करने की घटना ने राजनीतिक रूप ले लिया है। इस घटना को देखते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने शिकायत करते हुए कहा कि तृणमूल का मतलब चोर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशन सामग्री में घोटाला कर लिया गया ताकि ये आम लोगों तक ना पहुंच सके। काउंसिलर को देखलाम একই রকম ভাবে তার নিজের নামে রেশন ডিলারশিপ আছে এবং সেই ডিলারশিপের যে 400 থেকে 500 কুইন্টাল চাল সাধারণ মানুষকে বন্টন করার জন্য আসে, যেটা কেন্দ্র সরকার পাঠায়। বারবার মাননীয় বলেন যে কেন্দ্র সরকার চাল পাঠাচ্ছে না, টাকা দিচ্ছে না, এটা নয় সেটা নয়, কিন্তু আসল বিষয় হচ্ছে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু ওনাদের যে চোর সরকার, মানে তৃণমূল মানেই তো চোর, তৃণমূলের একটা অপোজিট নাম হচ্ছে চোর। তো সুতরাং তৃণমূল যে চোরের সরকার সেটা আবারও প্রমাণ করলো তৃণমূলেরই কাউন্সিলর, যে 400 থেকে 500 যে কুইন্টাল ধান আছে, যে রেশনের সামগ্রী আছে, সেটাকে পুরোপুরি লোপাট করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষকে এখান থেকে বঞ্চিত করেছে। আর সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই কথাটা আমরা বলছি না, এই কথাটা বলছে কারা? তাদেরই যে দপ্তর আছে, সেই দপ্তর কমপ্লেন পেয়ে ইনভেস্টিগেশন করেছে এবং তাদের হাতেই পুরো বিষয়টা ধরা পড়েছে। আর যেটুকু আমাদের কাছে সূচনা আছে, আমরা জানি যে তৃণমূল যেটা করবে সেটা হচ্ছে অন্য কোথাও 400 থেকে 500 কুইন্টাল সেই আনাজ কোথাও জমায়েত দেখিয়ে অন্য কোথাও। घटना के मुताबिक कुल्टी के पटियाला अल्पसंख्यक इलाके में एक तृणमूल पार्षद पर राशन कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि वो 400 से 500 क्विंटल राशन सामान का घोटाला कर रहा है। उसी आधार पर राशनिंग कार्यालय की ओर से पहल की गई। वहीं आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने बीजेपी की शिकायत के जवाब में कहा कि विपक्षी पार्टी का काम आलोचना करना है। দেখুন, এটা তো রাসায়নিক ব্যাপার নিয়ে কী হয়েছে সেটা তো পুরো ডিটেল আমাদের কাছে নেই, যেটা পুরো আমি বলতে পারবো। এই খবর আমরাও শুনেছি, ঠিক আছে। এবার কতটা কি হয়েছে ইনকোয়ারি হচ্ছে, দেখা যাবে। বিজেপির বক্তব্য আপনাদের সবাই হচ্ছে সরকারি মাল, কেন্দ্র সরকার যে পয়সা দিচ্ছে বা মাল দিচ্ছে আপনারা সব লুট করে দিচ্ছেন, এটারই তার উদাহরণ। বিজেপির নেতারা কি বলছে সেটা তো আমি উত্তর দিতে যাব না, ওরা যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ তৃণমূলে থাকছে তাকে বলছে ওরা যে এরা মানে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। যখনই हालांकि सलीम अख्तर अंसारी ने कहा कि उन्हें अपने निजी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तभी उनके पास शौकत की सूचना आई। बाद में उन्होंने राशन की दुकानों को सील कर दिया। 7 तारीख और আপনার রামপুর হাট মেডিকেল গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ওর অ্যাডমিশন ছিল। আমি 6 তারিখে এখান থেকে গিয়েছি। তারপরে 8 তারিখে আমরা খবর পেলাম, 8 তারিখে কি এখানে অফিসারগুলো আমার দোকানে ঢুকেছেন, স্টাফগুলো ছিল, আর ভুলভাল থেকে আমি সব চাবিটা নিয়ে গেছি। ওরা বললো তো আমরা একটা আপনি দেখাতে আপনি কবে আমি আসবো, অ্যাডমিশনটা করে আমরা আসছি। ঠিক আছে আপনি আসুন, তারপরে আমাদের একটু বন্ধ করে যাচ্ছে। উনি ঠিক আছে আপনি বন্ধ করে দেবেন, আমি আসবো, আমি আপনাকে দেখাবো কী আছে না আছে সব। আজকে সাহেব ওই রেশন দোকানে কিছু সমস্যা হয়েছে, আপনারা সিল করে এসেছেন, কী হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিপার্টমেন্টাল রুলস হিসাবে আমরা এরকম ইন্সপেকশান করি। ইন্সপেকশান করার সময় কিছু ওনার যে আমাদের কন্ট্রোল অর্ডার হিসাবে তো ইউপিডিএস কন্ট্রোল অর্ডার হিসেবে চলে, সেই হিসেবে ওনার কিছু ডিসক্রিমিনেন্সি পাওয়া গেছিলো। ওনার দোকান ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর থেকে ফার্দার আর কিছু বলতে পারবো না। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। चौरंगी फाड़ी के पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को चौरंगी चौकी की पुलिस ने एक स्थानीय निजी फैक्ट्री से गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए जलवलपुर से पुरुदी जाने वाले सड़क पर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 3 पंप वाली एक मोटर बरामद की। आरोपियों के नाम फागू भुइयां, भोला भुइयां, कालू भुइयां और बिमल भुइयां बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए चारों लोग जलवलपुर के भुइयां पाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों को शुक्रवार को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। घटना की जांच के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किए व्यक्तियों के पुलिस रिमांड की अपील की। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।
आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता उच्च न्यायालय से मिली ईसीएल शिक्षकों को राहत। ईसीएल स्कूल के शिक्षक कोलकाता उच्च न्यायालय से उस आदेश को लेकर खुश हैं जिससे कहा गया है कि उनको उनका उचित वेतन मिलेगा। शिक्षकों की शिकायत है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है और उनका वेतन भी कम है। कई लोगों को रिटायरमेंट का समय आ गया है, लेकिन 2011 के बाद से सैलरी में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ शिक्षकों का 4-5 महीने का तो कुछ शिक्षकों का इससे भी अधिक दिनों का बकाया है। इन सभी मुद्दों को लेकर ईसीएल के शिक्षकों ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शिक्षकों को वेतन न देने के मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को कड़ी फटकार लगाई गई। न्यायाधीश ने एक सप्ताह के भीतर कोलकाता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 4,80,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया। इस पैसे से सभी शिक्षकों को 3 महीने के लिए 5,000 रुपए के हिसाब से कुल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। কালকে একটা হাইকোর্টের নির্দেশ এসেছে আপনাদের টিচারের উপরে কি কমসে কম 3 মাসের বেতন দেওয়া, সেই জিনিসটাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? এই যে হাইকোর্ট থেকে চিঠিটা এসেছে এটা আমরা গ্ল্যাডলি ফিল করছি বা খুবই আনন্দের খবর। যাক, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, কিছুটা তো পাওয়া যাচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের। আর আশা করি যাতে ফুলফিল বরাবরই উপর থেকে কোর্ট থেকে এই অর্ডারটা চিরস্থায়ী হয়, তাহলে আরও ভালো হয়। আপনাদের এই যে আন্দোলনটা কতদিন ধরে চলছে? আপনাদের 91 থেকে চলছে, 91 থেকে। যদি তাহলে যেতাম না, টাকা দিয়ে দিলে আমরা কী জন্য যেতাম? কিছু দেয়নি বলেই তো গেছি। কি নাম আপনার? निमाचरण मुखर्जी। कल जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया इससे हम लोग बहुत खुश हैं। क्या है कि आज कई महीनों से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। बच्चे क्या खाएंगे, परिवार क्या खाएंगे, ये तो इसी पर ही डिपेंडेंट है। और हम लोग जो आज कई महीनों से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा तो इस हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग इसी तरह पढ़ाई जारी रखे हैं। और हम लोग खुशी हैं कि हाई कोर्ट एक अच्छा निर्णय दिया है कि तत्काल इन लोगों को कुछ रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए वेतन दिया जाए। आपका नाम? नंद किशोर गोयल। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए पांडवेश्वर ब्लॉक के छोरा ग्राम पंचायत अंतर्गत शीतलपुर, फकीरा, कोड़ापाड़ा एसएस के बच्चों ने हाथ में तख्ती लेकर जागरूकता रैली निकाली। रैली एसएसके से शुरू हुआ और शीतलपुर डायमंड शीतलपुर गांव का परिक्रमण किया। इस दौरान बच्चों ने नारे लगाए, गंदगी और नालों में पानी जमने ना दे, रात को सोए तो मच्छरदानी लगाकर सोए, तभी डेंगू से बचा जा सकता है। इस अवसर पर एसएसके के शिक्षक फोटिक चंद्र पांडे ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। मच्छरदानी लेकर सूतो, मच्छरों को दूर भगाओ, विद्यालय हमार घर, আবার দাবার ঢাকে রাখুন, মশা মাছি পালায় দূরে। আজকে আপনাদের র্যালিটা কেন? রেডিটি আমাদের আজকে রেডি হচ্ছে ডেঙ্গু মশা জিসে আবর্জনা থাকলে পরে ডেঙ্গু মশা হয়, তার জন্য এটা করছি আমরা রেডি। ঘরে ঘরে আওয়াজটা যেন যায় আর সচেতন থাকে মানুষ কি না এটা কত বড় রোগ হয়, এতে কত বড় বিপদ আসে, সেই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আজ আমরা স্কুল থেকে রেলি বার করাইছি। কোন স্কুল এটা? ফকিরা কোড়া এসএসকে শীতলপুর। আপনার নাম? আমার নাম ফটিক চন্দ্র পান্ডে। আপনি কি টিচার? আমি টিচার। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। काजोड़ा एरिया के नबो जामबाद प्रोजेक्ट के जामबाद कोयलरी में प्रथम पाली में 10:40 के लगभग वाइंडिंग ऑपरेशन के समय डोली ओवर वाइंडिंग होकर 20 फीट के लगभग नीचे पटका जाने से उनमें सवार 6 लोग बाल बाल बचे। 2 को चोटें आई, बाकी 4 को कुछ नहीं हुआ। 4 में 2 ठेका श्रमिक थे। इस घटना के संबंध में डोली पर सवार श्रमिक प्रकाश नायक, फीटर हेल्पर दिनेश महतो, प्रशांत मंडल, शंकरलाल बैरेट ने कहा कि प्रशांत कुमार मंडल इलेक्ट्रीशियन के कमर में चोटें आई हैं, जबकि शंकरलाल बैरेट के पैर में चोटें आई हैं। दोनों के इलाज के लिए कल्ला अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10:30 बजे के लगभग जब हम लोग डोली से नीचे खदान उतर रहे थे, तभी डोली अचानक 20 फीट पहले स्पीड से नीचे गिर गया। नीचे टायर और स्प्रिंग होने के कारण डोली जंप कर गया। इसमें कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। घटना के बाद कोयली प्रबंधन संखिन हलदार इंजीनियर बिपिन पांडे ने घटनास्थल पर जाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बोलिए। जैसे कि हम लोग अपना ड्यूटी से डोली पर उतर रहे थे, उतरने के दौरान माने आपका 20-25 फुट के आसपास बचा हुआ था। उसके बाद देखा गया कि ऑटोमेटिक डोली जो है वो हाई स्पीड हो गई है, जिसके कारण डोली बहुत माने आपका ये हुआ, माने नीचे जाकर पटक दिया। नीचे जाकर पटकने के कारण क्या आदमी आप लोग थे? हम लोग 6 आदमी थे उसमें। किसी गंभीर चोट नहीं लगा ना? टूटा फटा किसी का नहीं है। यही जो झटका लगा है, झटका में जितना जिसका लगा है इसी में लगा है। सिस्टम फेल हुआ था ना, क्या लगता है? अब कहीं तो हम नहीं बोल सकते, हम तो सिस्टम वही सब बोल सकेंगे। वही वो इंजीनियर क्या हुआ। आप लोग ड्यूटी करने जा रहे थे? हम लोग तो ड्यूटी करने जा रहे थे, नीचे जा रहे थे नीचे। आपको चोट लगा? हम लोग 6 आदमी थे। आपका परिचय? मेरा नाम शंकर लाल बरेड। आपका नाम? प्रशांत मंडल। वाइंडिंग हुआ है और हम जब यहाँ पे देखे हैं जो वो देखने के अनुसार हमको लगता है कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो वाइंडिंग इंजन का वो काम नहीं किया, जो देख के लगा। ये फॉल्ट किसका हो सकता है? फॉल्ट अब तो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है, इंक्वायरी होगी। फॉल्ट तो जरूर किसी न किसी का है, या ह्यूमन एरर है, या मैकेनिकल कुछ फॉल्ट है, या कुछ इंजन में कुछ आपको ब्रेक काम, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस काम नहीं किया, ओवर स्पीडिंग मीटर है शायद वो काम नहीं किया, कहीं ना कुछ है। सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। गड़बड़ी है ना, तकनीकी गड़बड़ी बोला जाए ना? हाँ, तकनीकी गड़बड़ी कह सकते हैं, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। सब्जेक्ट को इंक्वायरी है। इंक्वायरी इसको अगर रिगरसली किया जाए तो सही चीज़ सामने आएगी। इस वजह से हुआ ये शुक्र है कि किसी आदमी का जान नहीं गया। ये बहुत बड़ा, नहीं तो 4 आदमी उस डोली में था। आदमी इंजर्ड है, सीरियसली सुन रहा हूँ इंजर्ड है, और लोग गया है हॉस्पिटल। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही रिपोर्ट ऑफ इंजरी बता पाएंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह, स्पेशल सेफ्टी बोर्ड मेंबर। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV নিউজ। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। खुदीराम बोस के आत्म बलिदान दिवस को बांकुड़ा अनुशीलन समिति के पहल पर बांकुड़ा शहर के कुचकुचिया स्थित समिति भवन प्रांगण में मनाई गई। मौके पर समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका, सचिव प्रदीप नाग, समिति के अध्यक्ष चितरंजन कुंडू एवं सदस्य समीर दास तथा अन्य सदस्यों ने खुदीराम बसु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका ने कहा कि हर वर्ष खुदीराम बोसु का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस बारे में समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका ने कहा कि हर वर्ष खुदीराम बसु का आत्म बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस बार भी श्रद्धा के साथ उनका बलिदान दिवस मनाया गया। वहीं बांकुड़ा शहर के मचानतला मोड़ पर ऑल इंडिया DSO की तरफ से एवं बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के मॉर्निंग वॉकर समूह की तरफ से भी खुदीराम बोस का आत्म बलिदान दिवस पालन किया गया, जहां शहीद की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उद्योगे অনুষ্ঠানটা করা হবে? আমরা অল ইন্ডিয়া DYOর পক্ষ থেকে মহান বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গ দিবস 116তম আত্মোৎসর্গ দিবস আজ আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করছি বাঁকুড়ার এই মাচানতলার এখানে মাচানতলার মোড়ে। আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষের যখন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ছিল,
এই দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যে সমস্ত ছাত্র যুবক লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে এই ব্রিটিশকে হটানোর স্বপ্ন তারা দেখছিল, যেটা ক্ষুদিরাম সেই সুপ্ত বিবেককে ভাঙানোর জন্য যে বোমা মেরেছিলেন এবং ভারতবাসীর মনে একটা প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন যে এই দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে, সেই ভূমিকা তিনি রেখেছিলেন। এবং তার যে ঐতিহাসিক তাৎপর্য, সেই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণ করে আজকের দিনটি আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের চেষ্টা করছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সাবিরুদ্দিন ভুইয়া, আমি AIDYOর इंचार्ज। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बंग सरकार स्वस्थ परिवार कल्याण दफ्तर महकमा अस्पताल में शुक्रवार की सुबह को आपातकालीन अवलोकन इकाई का उद्घाटन किया गया। राज्य के ग्रामीण नगर उन्नयन मंत्री प्रदीप मजूमदार ने फीता काटकर इसकी सूचना की। इस दौरान उपस्थित थे रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कवि दत्ता, महकमा अस्पताल के सुपर धीमान मंडल एवं अस्पताल के डॉक्टर, नर्स एवं अधिकारी मौजूद रहे। प्रदीप मजूमदार ने इमरजेंसी वार्ड को घूम कर देखा और मीडिया के समक्ष बात करते हुए कहा कि इस महकमा अस्पताल में दूर दूर से मरीज आते हैं। ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद से विभिन्न अस्पतालों में धीरे धीरे बेड की संख्या से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। মহকুমা হাসপাতালে কি বলবেন? আপনারা দেখছেন ক্রমশ একটার পর একটা আমাদের মহকুমা হাসপাতালের সমৃদ্ধি হচ্ছে, অনেক কিছু নতুন সার্ভিস সংযোজিত হচ্ছে, মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা বাড়ছে, ভরসা বাড়ছে মানুষের। আমরা বিভিন্ন আশেপাশের পার্শ্ববর্তী জেলার থেকেও অনেক রুগী এখানে এখন আসছেন। তো সেই জন্যে এখানের পরিকাঠামোগত উন্নয়নেরও প্রয়োজন আছে, তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অনেক পরিষেবা এখানে বাড়িয়েছেন। স্ক্যান মেশিনেরও উনি অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন। এই নেই আমরা যেটা এখানে করাবো, এবার যেটা আমরা আগামী দিনে করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সটেনশন অফ ফিমেল ওয়ার্ড। আমি আশা করছি পুজোর মধ্যে আমরা ওটা করে ফেলতে পারবো। সেখানে আরও 30-40টা বেড ফিমেলের মেনলি আমরা বাড়াতে পারবো। এবং এটাও দেখছেন অ্যাজ ইফ যেমন এয়ার কন্ডিশন নতুন যা করছি আমরা এয়ার কন্ডিশন ওটাও হবে। এবং আরেকটা যেটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান মেশিন, যেটা আমরা খুব আশাবাদী যে খুব তাড়াতাড়ি আমরা এখানে সিটি স্ক্যান মেশিনটা আমরা লাগাতে পারবো স্টেট গভর্নমেন্টের ইয়েতে। কারণ যারা এর পার্টনার আমাদের যারা গভর্নমেন্টে, তারা অলরেডি এসে জায়গা পর্যবেক্ষণ করে গেছে, দেখে গেছে এবং আমরা খুব আশাবাদী খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। ব্যাস আপনাদের শুধু আপনাদের দরকার সহায়তা, আমাদের সঙ্গে সহায়তা দরকার আপনাদের। তাহলে বেডের হবে ওটা ফিমেল ওটা আশা করছি আমরা নিয়ার অ্যাবাউট 40-50 বেডের এক্সটেনশন করব। আমাদের যেটা প্যাটার্নে আগে কিচেন ছিল, আমরা ওটা সেটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমরা বাইরের লোকজনকে দিয়ে আমরা ওটা ডেভেলপ করে ওখানটা আমরা এক্সটেনশন অফ ফিমেল ওয়ার্ড করছি। আশা করি পুজোর আগে হয়ে যাবে। এখানে একসাথে কতজন এমার্জেন্সি থাকতে পারে? কতজন একসাথে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন্তত এমার্জেন্সিতে অ্যাট এ টাইম যদি রাখতে 24-25 জন তো রাখতেই পারবো আমরা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস, অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
दुर्गापुर के बेनाचत्ते निवासी जितेंद्र केशी नामक व्यक्ति ने शुक्रवार की सुबह गांधी मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप पर अपने स्कूटर में पेट्रोल भरा लिया, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर जाकर स्कूटी उसकी अचानक बंद हो गई। तभी वह स्कूटी को मैकेनिक के पास ले गया तो देखा कि टैंक से पानी निकल आ रहा है। तभी जितेंद्र केशरी समेत कई लोग पानी मिला पेट्रोल लेकर पंप के सामने पहुंच गए। पेट्रोल पंप बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पेट्रोल पंप अधिकारियों ने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटना तो पहले कभी नहीं घटी। আমি এই পেট্রোল পাম্পে প্রত্যেক শুক্রবার করে ফুল ট্যাঙ্ক তেল নিই। আজকে তেল নিয়েছি, নেওয়ার পর পেট্রোল পাম্প থেকে গাড়ি বের করে গান্ধী মোড় ক্রস করার পর গাড়ি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হওয়ার পর গাড়ি আমি ওখান থেকে ঠিলে আমি জানি আমার গাড়ি ফল্ট হয়েছে, আমি শোরুমে নিয়ে যাই। গাড়ি শোরুমে নিয়ে যাওয়ার পর গাড়ির মেকানিক যখন গাড়িটাকে দেখে তখন আমি ওনাকে বললো যে আপনার গাড়ি কি তেল ফুল করেছেন? বললাম হ্যাঁ ফুল করেছি। উনি খুলে যখন চেক করেন দেখছেন পুরো ট্যাঙ্কিতে জল ভরা আছে, তেলের জায়গায় জল মিক্সিং আছে। তারপরে গাড়ি আমি ওখান থেকে নিয়ে এসে এই পেট্রোল পাম্পে এসেছি। আমার ক্ষতিপূরণ ওই যেটা গাড়ির যে ক্ষতি হয়েছে, নতুন গাড়ি আমার, এই নতুন গাড়ির যা আমার ক্ষতিপূরণ হবে সেটা ওনাকে বে করতে হবে। আমি জনতাকে বলবো যে অনেকে এরকম আছে কমপ্লেন করেছেন, তারাও বলছেন যে ম্যাক্সিমাম দিন এরকম হয় যে তেল নিলে জল বেরোয়, এই পাম্প থেকে নিলে জল বেরোয় ম্যাক্সিমাম দিন। এখনই একজন এসেছিলেন দাদা, চলে গেছেন, উনিও বলেছেন যে কালকে ওনার গাড়ি এখান থেকে তেল নেওয়ার পর বন্ধ হয়েছে। প্রায় এরকম এই পেট্রোল পাম্পে এইভাবে জল বেরোচ্ছে তেলের সঙ্গে মিক্সিং। এটা কোন জায়গার পেট্রোল পাম্প? এটা হচ্ছে আমাদের গান্ধী মোড়ের পেট্রোল পাম্প, কোকো পাম্প। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন্দ্র কেশরী। মোটামুটি আমরা সকালবেলা প্রতিদিন টেস্টিং করি। আজকে আমরা টেস্টিং করেছি কিন্তু কোনো জল টল আমরা কিছু পাইনি। আর আমাদের এখানে অটোমেশন সিস্টেম আছে, অটোমেশন সিস্টেমে কোনো শো করছে না যে ওয়াটার লেভেলে জল আছে বলে। নাহলে আমাদের এমন এখন কোম্পানির সিস্টেম আছে যে ওয়াটার লেভেল বেশি হয়ে গেলে অটোমেটিক পাম্প যে ডিউ থেকে আমার নজল থেকে আছে সেই ডিউজের অটোমেটিক লক হয়ে যাবে, সেটাও এখনও লক দেখাচ্ছে না। তো যথারীতি আমরা দু একটা কাস্টমার আমার কাছে এসে বলছে যে আপনাদের এমনি ট্যাঙ্ক থেকে জল বেরোচ্ছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেল আমরা বন্ধ করে দিয়েছি এবং আমরা দেখছি কাস্টমারকে সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। আমরা ওনাদের সঙ্গে যথেষ্ট সম্ভব কোঅপারেট করে ওনাদেরকে যতটা সম্ভব আমরা সমস্ত কিছু ওনাদেরকে কম্পেনসেশন দেওয়ার ব্যাপারে আমরা দায়বদ্ধ আছি। জল ধরুন বর্ষাকাল তো এখন, হয়তো আজ পর্যন্ত আমার এখানে মোটামুটি 22 বছর হয়ে 14 বছর 15 বছর হয়ে গেল, তো 22 বছরের পাম্প আজ পর্যন্ত এই প্রবলেম আমি কোনো ফেস করিনি। যাই হোক, একটা অঘটন ঘটেছে, হয়তো কাল রাতে যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে তার জন্য হয়তো মনে হচ্ছে জল ট্যাঙ্কিতে কিছুটা ঢুকেছে। তো সেটা আমরা টেকনিক্যালি আমাদের লোক এসছে, আইওসি থেকে লোক এসছে, যে কাস্টমারগুলো সমস্যা তাদেরকে যে যার যা ক্ষতিপূরণ হয়েছে আমরা সমস্ত কিছু সেটাকে মিটিং করি। এখন পেট্রোল পাম্প আপাতত এই মুহূর্তে এটা যতক্ষণ আমরা সলিউশন করছি, যতক্ষণ আমরা নিজেরা স্যাটিসফাইড হচ্ছি জল থাকছে না, ততক্ষণ আমরা পেট্রোল পাম্প বন্ধ রাখবো। একে আমরা সমস্ত ক্লিয়ার করে কাস্টমারকে সমস্ত রকম তাদেরকে সাহায্য করার পরে আমরা পেট্রোল পাম্প আবার চালাবো। কতটা সময় লাগতে পারে? কতটা সময় লাগতে পারে বলতে আমাদের টেকনিক্যাল লোক এসে গেছে, তো মোটামুটি আমাদের আশা করছি ঘন্টা 1.5-2 মধ্যে আমরা সমস্ত কিছু। আপনার নাম কি? আমার নাম সৌমিত্র দাস। আপনাদের এই পাম্পের নাম? পাম্পের নাম হচ্ছে কোকো গান্ধী মোড়, অ্যাডক হেমন্দ্র ফুয়েল স্টেশন। আপনার ডেজিনেশন? আমি পাম্পের ম্যানেজার। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया में आज दादी परिवार द्वारा सावन के पवित्र महीने को देखते हुए हटिया शिव मंदिर से जल लेकर शिवपुर स्थित बाबा दाटेश्वर शिव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई, जहां 151 महिलाओं द्वारा पैदल 2 किलोमीटर चलकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण किया गया। दादी परिवार द्वारा यह पहला अवसर था जब इतनी ज्यादा तादाद में महिलाओं ने जल अभिषेक किया, साथ ही पूजा अर्चना की। बारिश कल रात से सुबह तक होने पर भी महिलाओं का उत्साह कम नहीं हुआ। गाजे बाजे के साथ यह शोभा यात्रा निकाली गई, जहां पुरुषों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस मौके पर राजेश शर्मा, संदीप खैतान, परसोत मंडल, महेश मेगोतिया, मधु खैतान, आनंद खैतान, राजेश कानोड़िया, कैलाश सावरिया, मनोज सिंघानिया, पप्पू डोकानिया आदि मौजूद थे। साथ ही दादी परिवार की ओर से बिंदिया खैतान, बबीता मंडल, चीनू गुप्ता, अंजू खैतान, नीलम डालमिया, मधु गुप्ता, सुधा साहूवाला, रीना अग्रवाल मौजूद रही। साथ ही पूजा के उपरांत भक्तों के बीच प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी।
हर महादेव, जय दादी की, जय दादी की, बोल बम, बोल बम, बोल बोल बोल। दादी परिवार जामुड़िया द्वारा प्रथम कावड़ यात्रा जामुड़िया शिवपुर हटिया मंदिर से शिवपुर धाम द्वाटेश्वर धाम तक हम लोग लेके आए हैं। इसमें हमें सभी जामुड़िया के जितने भी शिव भक्त हैं उनका बहुत बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। सभी शाखाओं ने बहुत बहुत सहयोग दिया है। इसके लिए हम सभी शाखाओं का आभारी है। शिवपुर धाम द्वाटेश्वर धाम के जितने भी भक्तजन हैं उन्होंने हमारा बहुत ही भव्य स्वागत किया है। उनके लिए उनका बहुत बहुत आभार और बहुत ही आनंद आया इस यात्रा में। और हम सभी जामुड़िया वासी बहुत ही शिव भक्त और बहुत भक्ति से ये यात्रा कावड़ यात्रा लेके आए हैं। और हम चाहते हैं बाबा की कृपा हम पर इसी तरह बनी रहे। हर साल हम इसी तरह कावड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। हर हर महादेव। कितनी महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई है? 251 से लेकर 300 भक्तों ने इसमें कावड़ यात्रा कलश उठाए हैं। और 200 भक्त और साथ में हमारा सहयोग के लिए आए हैं। हमें बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये कावड़ यात्रा हटिया मंदिर जामुड़िया से लेकर शिवपुर धाम तक आई है। ये प्रथम वर्ष था, आप लोग का कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सभी का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। सुबह सुबह बहुत अधिक बारिश थी, हमें भय भी लग रहा था कि कार्यक्रम का आगमन शुभारंभ कैसे करेंगे, लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ सारी परिस्थिति अनुकूल हो गई। और हमें बहुत ही आनंद और भक्ति से हम लोग ये यात्रा कावड़ यात्रा निकालते हुए आए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी, आपका परिचय? मैं बिंदिया खेतान, हम लोग दादी मंदिर की सब सदस्य हैं और सबके दादी मंदिर के सभी सदस्यों का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। जय दादी की, जय जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करे 9432546328 नंबर पे। एसीएल के सोनपुर बाजारी एरिया सभागार में CMPF की समस्या को लेकर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के प्रतिनिधि, एरिया प्रबंधक और CMPF रीजन 1 के सहायक आयुक्त मौजूद रहे। इस संबंध में एरिया कार्मिक प्रबंधक अबीर मुखोपाध्याय ने बताया कि एरिया के श्रमिकों का CMPF में कई समस्याएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही है। उन समस्याओं के समाधान के लिए CMPF के सहायक आयुक्त अपूर्व कुमार पाठक, यूनियन प्रतिनिधि में BMS से नरेंद्र सिंह, KMC से राकेश कुमार, KKSC से हैदर मंडल, इंटक से भक्ति पदो चक्रवर्ती और HMS से शिवनाथ घोष आदि मौजूद रहे। प्रबंधन की ओर से APM, AFM प्रकाश कुमार सिंह, सीनियर कार्मिक प्रबंधक कजरी दास, अमित गुप्ता, MD नासिर आदि मौजूद रहे। अच्छा चल रहा है, 2-4 केस है जो देवाशीष बोला वो हम लोगों को बोलना है। जो पार्ट ऑफ मेरे देवाशीष है, मगर समस्या का समाधान अभी तो कमिश्नर साहब को आपको मिलकर करना है। जो यहाँ इनकमिंग ज़्यादा है, आउट गोइंग कम। ये इनकमिंग प्रोजेक्ट मगर अभी 2 साल से इनकमिंग बंद हो गया। मैंने ट्रांसफरेबल जॉब सारे लोग यहाँ बाहर से कुरियर से है, डिफरेंट कुरियर से, कोई ऐसा कुरियर नहीं है उसमें नाम का नहीं मिलता है। और उसका जो 2% वो भी नहीं आता, 2% भी नहीं जो उनके पार्ट में आता, ये कम जाता है। 2% सबसे बड़ा जन प्रॉब्लम है 2%। क्या देवाशीष? तो 2% पब्लिक का नहीं मिलता है। उसको लाने में या तो कुरियर ही नहीं है सभी उसमें, या तो उसका यूनिट नहीं है, या तो एरियो नहीं। नियति और नियत ये दोनों को ठीक रखने की आवश्यकता है। आधे समस्या का समाधान वही निश्चित। और CMPF जो है, मैं पाठक साहब को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपने कहा है नए आए हैं, डिप्रेशन में है 3 साल के लिए, भगवान करे हमेशा रहें और आगे बढ़ें भी। लेकिन जो वहाँ के विषय में जो मैंने सुना और जो बाजार में चारों तरफ जो चर्चा है, इस कलंक से थोड़ा ऊपर निकलने की आवश्यकता। मैं बहुत क्लियर मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि
ऐसा भी नहीं है कि आपका रीजन 1 से रीजन 4 जो है वह इतना दूर पड़ता है कि लोग वहां से जाके तकलीफ होता है। ऐसे कई लोग हैं जिसका लेजर कार्ड ही गायब है, और जब वो आदमी जब 5 तक दौड़ रहा है, बाद में CMPF अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। बांकुड़ा विधानसभा अंतर्गत जगदल्ला एक ग्राम पंचायत का शुद्धिकरण तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया। शुक्रवार को गंगाजल छिड़क कर एवं दूध से धोकर कार्यालय का शुद्धिकरण किया गया। जहां इससे पहले भाजपा का बोर्ड था, शुक्रवार को तृणमूल ने बोर्ड गठन किया, जहां गुरुदास मुखर्जी को प्रधान तथा विश्वजीत कालिंदी को उप प्रधान बनाया गया है। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। शुक्रवार की सुबह जामुड़े के कारखाना में लोहा सामग्री ले जाने वाले किरान के चक्के ब्लास्ट होने से 43 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और इनके पास खड़े 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन तीनों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में वार्ड संख्या 7 में स्थित मान एंड पावर प्लांट लिमिटेड की यह घटना है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कारखाना के INTTUC GSS श्रमिक विद्युत गोराई ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के अधीन कार्य करने वाले एक श्रमिक आज सुबह इस कारखाने में कार्य करने के दौरान किरान गाड़ी का टायर किसी कारणवश खराब हो गया था। इस गाड़ी को खड़ा कर खलासी नाश्ता करने गया था, तभी इस गाड़ी का ड्राइवर किरान गाड़ी का चक्का लगाने लगा, तभी वह चक्का ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण बिहार के रहने वाले 43 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन घायलों को आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जब घटनास्थल पर पहुंचा तो इस कारखाने के एक अधिकारी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। इसकी जानकारी हमारे जामुड़िया ब्लॉक 1 INTTUC के अध्यक्ष बाबरत बैनर्जी को भी दी गई। वहीं इसकी खबर मिलने के तुरंत ही बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। জামুড়িয়া 200 ক্লিন নতুন তৈরি হয়েছে, তো সেইখানে কাজ চলছিল। আর কাজ চলতে চলতে যে ক্রেন ড্রাইভার যে আছে সে অপর থেকে ও খালাসি ছিল না, অপর থেকে এসে নিচে টায়ারের কিছু টাইট করছিল, হঠাৎ টায়ার ব্লাস্ট করে যায়। তো আমরা যখন আওয়াজ উঠে তখন দৌড়ে এসে দেখছি 3 জন ইঞ্জুরি হয়েছে, 3-4 জন ইঞ্জুরি হয়েছে। তার মধ্যে একজন একদম স্পট ডেড হয়ে গেছে, এখান থেকে একটু উঠে গেছে, গেদি বেরিয়ে গেছে। আর তো আমরা মানে গাড়ি ব্যবস্থা বলার জন্য অফিসে খবর দিই, অফিস থেকে লোক এসে গাড়ির ব্যবস্থা করলো। আমাদের মানুষ ছিল যে GM, আমি যখন বলতে যাই তখন আমাকে বলছে তুমি এখান থেকে হাঁটাও, তুমি কে আমি বুঝি নেবো। আমাকে এমনকি এমনি কলার ধরে ঢেকালেই করলো। তুমি অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেডের জেনারেল সেক্রেটারি বিদ্যুৎ গোরাই। আচ্ছা, আর এখন পর্যন্ত কী হলো? এখন ওই নিয়ে গেছে আর বডিটাকে বাইরে নিয়ে চলে গেলাম। আমি বারণ করলাম যে এখান থেকে বডি আপনি নিয়ে যান না, যেটা মারা গেছে এখানে থাক। হ্যাঁ, বাড়ির লোক আসবে, দিয়ে তারপরে একটা ফয়সলা হবে, তারপরে নিয়ে যাবেন আপনার। কোথাকার লোক আছে? ম্যানেজমেন্টের লোক। বডি তুলেছে সেন গুপ্তা, মেকানিক্যাল ইনচার্জ, আর মুন্না সিং। নামটা বলে দুর্গাপুর নিয়ে যাবে। তো মরা মানুষটাকে হসপিটাল কি জন্য নিয়ে যাবে? ও নামটা কি আছে যে মারা গেল? দাদা আমি বলছি বাপি। এটা ঘটনা কখন হয়েছে? ঘটনাটা ঘটেছে ঠিক 12:40-এর কাছাকাছি। 12:40 নয়, মোটামুটি হ্যাঁ 12:20 হবে, 20। পুলিশ এসছে? হ্যাঁ, পুলিশকে আমি ওসিম থেকে ফোন করেছিলাম যে এরকম ব্যাপার, প্রভাত দেবনাথে খবর দিয়েছে, পুলিশ এসছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসে ভিতরে আলোচনা কিছু একটা হয়েছে। ইউনিয়ন পক্ষ থেকে কী হবে আপনার? ইউনিয়ন পক্ষ থেকে এবারে আমরা খবর নেবো বাড়িতে যে কে আছে, তাদের বাড়ির লোককে এসে চেষ্টা করব যে মানে যেটা পাই সেটা যেমন সঠিকভাবে পাওয়া যায় চেষ্টা করবো সেটাই। আপনার নাম? আমার নাম বিদ্যুৎ গোরাই।
আমি INTTUC। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।